Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 5 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6, Importance of Female Education. Essay laws of this lesson are: identify dialogue as a mean of holding a direct conversation about current and prevailing issues. Learn the importance of getting knowledge according to the teachings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Know the importance of education as a Muslim and as a human being. Understand that acquiring knowledge is equally important for men and women. Develop listening and speaking skills. Develop creative writing and reading skills. Develop thinking skills. Page number 43 of your textbook. As you can see, the text is written in a dialogue form. Dialogue form में है, conversation form में है, conversation हो रही है between the teacher and the students. You can see this teacher is sitting here and these are all students here. They are having conversation. The teacher is having conversation with students one by one. 4 students we have here. And they are having conversation about what? Yes, the importance of education. Why the education is important for females especially. We will read the text in this lesson and discuss the importance of female education. Let's start reading. Miss Zahra. The teacher name is Miss Zahra. She says, Assalamu alaikum, dear students. We shall discuss about the necessity of the female education. Necessity कहते हैं ज़रूरत को. Walaikum salam, miss. It is a very important topic to discuss about. Who says? Hajra says, one of her students. Hajra कहती है कि ये बहुत important topic है discuss करने के लिए. Miss Zahra says, okay, then describe the meaning of education. अब वो क्या पूछती हैं कि education का meaning बताओ, describe करो education को. What is education? Education means the training of a person both mentally and morally. अक्सा क्या कहती है फिर कि education का क्या मतलब है? एक इंसान की ट्रेनिंग both mentally and morally. उसकी mental growth भी होती है और morally भी उसमें उसकी आदत, उसकी habits जो होती हैं, उसका way of life जो है change हो जाता है because of education. Miss Zahra says, why is the female education so important? अब मिस ज़हरा पूछती हैं कि फीमेल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. देन मेमूना सेज, इन लाइफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस्लाम हैज मेड एजुकेशन ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मैन एंड वुमेन. ऑब्लिगेटरी मतलब फर्ज कर दिया है. इस्लाम ने हर मर्द और औरत पर जो है एजुकेशन को फर्ज किया है. और लाइफ में एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इस्लाम gives special importance to the education of women. और इस्लाम ने स्पेशली इंपॉर्टेंस दी है फीमेल की एजुकेशन को, वुमेन की. क्यों? क्योंकि अगर आप एक औरत को घर में एजुकेट करेंगे तो औरत क्या होती है, घर को संभालती है, पूरे घर को, तो वो उसको पता होगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, घर को कैसे संभालना है इन अ वेरी गुड वे. और वो कैसे ये सब कर सकेगी? यस, थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन. जब एजुकेशन होगी उसके पास तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगी, बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सकेगी, उनको संभाल सकेगी, क्योंकि उसके पास नॉलेज होगा, एजुकेशन होगी. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सीकिंग नॉलेज इज ड्यूटी ऑन ऑल मुस्लिम्स, बोथ मैन एंड विमेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन बगैर किसी फर्क के, जेंडर के फर्क के कि वो औरत है या आदमी है, उस पे जो है इल्म हासिल करना फर्ज है. और ये जो है उनकी हदीस किस चीज में है, किसने नरेट किए? इब्न माजा इन अल सनान में जो है कोट की गई है, ये नरेट की गई है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन मिस ज़हरा सेज, what is the importance of female education in the current world? आज की दुनिया में, मौजूदा दुनिया में फीमेल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है?
Hajra says, female education is undoubtedly important because an educated nation depends on an educated mother. In a house, a woman plays the most important role. देखिए हाजरा ने वही बात की जो मैंने आपको बताई. फीमेल एजुकेशन क्या है? अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी नेशन, किसी कौम की तरक्की के लिए. एक नेशन की जो प्रोग्रेस है डिपेंड करती है एजुकेटेड मदर पे. मदर क्या होती है? एक माँ जो है पूरे घर को संभालती है और इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका पूरे घर में. मिस ज़हरा सेज, हाउ कैन women play a great role? मिस ज़हरा कहती हैं कि एक औरत कैसे ग्रेट रोल प्ले कर सकती है. Then Sajida says, as Napoleon said, give me good mothers and I will give you a good nation. So by acquiring education, women can build up the whole nation. नेपोलियन कहता है, a famous personality Napoleon says that मुझे अच्छी माएँ दो, give me good mothers, educated mothers, and I will give you a good nation. तो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा. इससे इसका क्या मतलब हुआ कि मदर जो होती है मोस्टली सारा वक्त अपना घर पे गुजारती है, अपने बच्चों के साथ उनकी परवरिश करती है, उनको पढ़ाती है, उनको बड़ा करती है, उनका ख्याल रखती है. तो क्या है, वो उनको नॉलेज भी पास करेगी, उनका अच्छे तरीके से ख्याल कर सकेगी, उनको सिखाएगी जो उसको पता होगा. तो एक्वायर करना, हासिल करना एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो औरतें हैं वो पूरी एक कौम को बनाती हैं. बिल्ड अप द नेशन, होल नेशन, पूरी एक कौम को बनाती हैं. और कौम क्या है? हमारे बच्चे. बच्चों को कौन संभालती है? माएँ संभालती हैं. तो माओं का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है. मिस ज़हरा सेज, हाउ कैन दे बी हेल्पफुल आफ्टर गेटिंग एजुकेशन? लेकिन ये मददगार कैसे हो सकती हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद? हेल्पफुल कैसे हो सकती है? हाउ द वुमेन और मदर कैन हेल्प? देन हाजरा सेज, एजुकेटेड मदर्स कैन बेटर एजुकेट देयर किड्स. एजुकेटेड मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर सकती हैं, अच्छे वे में. दे कैन बी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अप एन एजुकेटेड नेशन. और हेल्पफुल हो सकती हैं एक एजुकेटेड नेशन को बनाने में, एक तालीम याफ्ता कौम को बनाने में. दे कैन अर्न मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. और एजुकेटेड वेमेन क्या कर सकती हैं? अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सकती हैं, मनी अर्न करके, पैसे कमाकर. She can be a doctor, a teacher, a lady doctor, a visitor, health supervisor. They can enhance the speed of the development of the country. Enhance, बढ़ा सकती हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट को, तरक्की को. Without female education, no society can progress. फीमेल एजुकेशन के बगैर कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस, तरक्की नहीं कर सकती. इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ देयर फैमिली. और आजकल की मौजूदा दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी और औरत एक साथ काम करें, फाइनेंशियल नीड जो हैं अपनी फैमिली की पूरी करें. दोनों को मिलके जो है अपनी फैमिली के लिए कमाना होगा, काम करना होगा. फाइनेंशियल नीड्स, जो पैसे की ज़रूरत है, जो फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो कब मुमकिन होगा? अच्छे तरीके से जब मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करें. विदाउट फीमेल एजुकेशन ए वुमेन्स ड्रीम कैन नॉट कम ट्रू. और फीमेल एजुकेशन के बगैर एक औरत का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता. एजुकेशन डेवलप्स द इंटेलेक्ट इन वुमेन. इंटेलेक्ट क्या कहते हैं? समझ पैदा करती है एक औरत में एजुकेशन. Educated and working women are a source of inspiration for the rest of the women. और एजुकेटेड और काम करने वाली औरतें किस चीज़ का जरिया है? इंस्पिरेशन. मुतासिर करती हैं बाकी औरतों को भी कि वो भी तालीम हासिल करें, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए. Miss Zahra says, very good, I'm quite happy to know your views. May Almighty Allah bless you all. मिस ज़हरा क्या होती हैं? बहुत खुश होती हैं. वो कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई आपके व्यूज के सुनकर. As you saw, all the students presented their views about the female education, and their views are very good, very impressive.
They also talked about it from the Islamic perspective too. उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया और कुरान का हवाला भी दिया कि किस तरह अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत पर तालीम को फ़र्ज किया गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू get education for female, to send our female to schools, colleges, universities, because they are the builder of the nation. Page number 45 of your textbook, you can find the meaning of the difficult words here in your word bank. Let's do the exercise of it. Answer the following questions. Question 1, what does education mean? Education का जो meaning है एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है उसको, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट से. क्वेश्चन 2, व्हाट डज इस्लाम से अबाउट फीमेल एजुकेशन? फीमेल एजुकेशन के बारे में इस्लाम क्या कहता है, ये भी आपके टेक्स्ट में मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 3, हु प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अ हाउस? और एक घर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? यस, इसके बारे में भी हमने आपके टेक्स्ट में पढ़ा है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड ऑल द क्वेश्चन from the text. The fourth one, what is the central idea of this dialogue? Central idea क्या था, किस चीज के बारे में था? What is the main target of that dialogue? Dialogue form में था हमारा text, dialogue between the teachers and the student. तो उसका central idea क्या था, purpose क्या था of dialogue, of talking, of conversation? Question 2, make sentences of the following words. इन वर्ड्स के मीनिंग आपने डिक्शनरी में देखने हैं, इनको समझना और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ख्याल रखें. कैपिटलाइजेशन, कॉमा, फुल स्टॉप, इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है. पंक्चुएशन हमने डिस्कस भी किया आपके प्रीवियस लेसन्स में, तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेसन. थैंक यू.